Today I'm starting the same chapter along with NCERT. On the when I will be sharing the NCERT with you, उसके ऊपर मैंने सिलेबस को भी शेयर किया है. This is the syllabus and this is the CBSE syllabus. ये मैंने CBSE के साइट से ही लिया है. If you look into the syllabus, you will find that we have public and private sector enterprise concept. आपको इसका कंसेप्ट करना है. देन पब्लिक सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनीज को करना है. एंड देन ग्लोबल के अंदर जॉइंट वेंचर एंड पीपीपी मॉडल करना है. क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं, इसके अंदर रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री करके एक कंसेप्ट है जो आपका कटा हुआ है, omitted है. This is the syllabus according to CBSE, so you can go accordingly to this. First of all, हम लोगों का जो है, we will be starting with what is the meaning of private and what are the meaning of public. हम लोग ऑलरेडी सेकेंड क्लास के अंदर कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर में, that all those which are owned by a single person or maybe in partnership, ये सब कुछ आपका आता अंडर प्राइवेट. Whereas the one which is owned by government directly or indirectly, those are called as public sector. Right? You must have come across all types of business organizations in your daily life. There are shops owned by sole, big retail owned by a company. Then you might be having the services like legal service, medical service, जो कि एक या दो पार्टनरशिप में लोग करते हैं. Similarly, there are other offices which may be owned by the government. For example, railways, postal and telegraph. This means then there are private couriers. Then there are business which operate in more than one country known as global enterprise. यानी कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ही हमने पढ़ लिया है that there are various sectors. One is the private, second is the public, third is the global. ये तीन हमारे जो है चल रहे. Right? Now, what is the difference between private and public? As per the syllabus, we need to go through this. The private sector consists of the business owned by individuals or group of individuals, which we have already done in the previous chapter. That is sole, partnership, joint Hindu, cooperative, and company. The public sector consists of various organizations owned and managed. They may be either partly or wholly owned by central or state. जरूरी नहीं है कि उसमें सब पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही रखे. कई बार there might be a partnership also. जैसे 51% हमारे पास है, पब्लिक के पास है, बाकी उनके पास. They may be also part of ministry. ये जो part of ministry है, this is departmental. Come into existence by special act or parliament is आपका statutory. The government through these enterprises participate in economic activities of the country. यानी कि इससे अब directly they don't earn the money which can go to the treasure, but it goes to the treasure of the government.
The government in its industrial policy resolutions from time to time defines the areas of activities in which private and public sectors are allowed to operate. मैंने आपको एक बात बहुत शुरू में बताया था when I started the chapter, when I started it as a summary, that in our country, when we got the independence, हम लोगों को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो हमारे पास दो मॉडल्स थे. या तो हम कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उसको अपनाएं. कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज आपकी सेट हो जाए. अब इंडस्ट्री सेट होंगी तो देन व्हाट विल हैपन? दे वुड गिव द मनी, दे वुड गिव द टैक्सेस, दैट कैन बी देयर. सेकेंडली हमारे पास था सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी या बड़ी, कंज्यूमर या फिर कैपिटल गुड्स, सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट करे, जैसे रशिया का मॉडल था. लेकिन इंडिया जो है, neither it went for the capitalist model nor it went for the socialist model. हमने लिया mixed economy. This comes and this has come as a paper question in your exam कि हमारा जो इकोनॉमी है उसको क्या बोलते हैं. मीन्स जो हमारे कैपिटल, बड़े बड़े गुड्स हैं जिसमें प्राइवेट पीपल ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था. एंड जो इंडस्ट्रीज आपके छोटे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें पैसा कम लगता है, उनको प्राइवेट सेक्टर्स को दिया था. सो दैट इज व्हाई वी कॉल आवर इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. लेकिन इसी आपके जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं. In the industrial policy resolution, the government had specified its approach towards development of industrial sector. हम लोगों ने जो है 5-year plan बनाया था. 5-year plan के अंदर क्या था? जो हमारा पहला 5-year plan था, that focused only on agriculture. मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी हमारे एक्शंस थे, यानी कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड आपके वो सब कुछ पर ध्यान दिया गया. द सेकेंड जो हमारा 5-year प्लान था, दैट वाज ऑन इंडस्ट्रीज. The roles of private and public sectors were clearly defined, and the government, through various acts and regulations, overseeing the economic activities of both private and public. Then, the Industrial Policy Resolution 1956 also laid certain objectives, जिससे कि वो growth and industrialization को जो है पूरा कर सके. And then the public sector was given a lot of importance, but at the same time mutual dependency was also emphasized. मतलब जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, they all were owned by the government. Reason: India was not self-sufficient. India did not have this much of capital. तो गवर्नमेंट को ही उन एरियाज को डेवलप करना था. बट जब हमारा 1991 का पॉलिसी आया, दिस विल बी अ क्वेश्चन इन योर 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3. दिस विल बी अ क्वेश्चन. तो जितनी भी हमारी पहली पॉलिसीज थी उनको हटा दिया गया, एंड द गवर्नमेंट वाज डेलिबरेटिंग डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है. व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को वापस विड्रॉ कर लेना. यानी जो गवर्नमेंट ने जिन जिन एरियाज पर इन्वेस्ट कर रखा था पहले, 91 के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट से गवर्नमेंट ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हटा दिया था और उसे प्राइवेट को दे दिया था, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. At the same time,
FDI was invited from business houses outside India. FDI का मतलब है foreign direct investment, यानी कि the investments which could be made by the large companies, global companies in our country. Thus, MNCs or global which operate in more than one country gain entry to Indian economy. और अब we have public, private, global coexisting in the Indian economy, right? The next is forms of organizing public sectors. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ अपना पब्लिक सेक्टर, जो अभी हमने किया था. एज आई हैव शोन यू द सिलेबस, हम लोगों ने किया है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का कंसेप्ट एंड व्हाई इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम लोग जा रहे हैं towards the forms of, because in this chapter in your book there is one particular पूरा एक concept है जो हटा हुआ है. Now, what are forms of organizing public sector? Public sector means in which the government is directly or indirectly taking participation. Government's participation in the business and economic sector needs some kind of organizational framework. हम लोग प्राइवेट का तो पढ़ चुके हैं, सोल पार्टनरशिप, अब हम पढ़ रहे हैं. In the public sector, as it grows, an important question arises in respect how it is organized. अब भाई पब्लिक, हमें गवर्नमेंट, उसका तो कंपनी का तो पता है कि भाई मैं ओन कर सकती हूँ, आप ओन कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को कौन ओन करता है? क्योंकि गवर्नमेंट तो आज है तो कल नहीं है. The government has a major role to play in the formation of public sector, and it acts through its people, offices, employees, and decisions on behalf of government. As the government is not stable, मतलब हमारा आज मोदी का गवर्नमेंट है, दोबारा इलेक्शन होंगे, हो सकता है दोबारा मोदी आए, लेकिन इलेक्शंस तो होंगे ना. अब जब दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट हो सकता है अपने पॉलिसीज को चेंज करे, तो जो वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं दे आर ऑल टेकन थ्रू द एम्प्लॉयज. फॉर दिस पर्पस the public enterprises were formed to participate in the economic activities. They are expected to contribute to the economic development in today's liberalized competitive world. They are owned by public and accountable to the public through the parliament. They are characterized by public ownership. पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या है? उसमें जो पब्लिक का फंड है उसको यूज किया जाता है. द फंड में बी द बॉन्ड्स, गवर्नमेंट कंपनी है तो हो सकता है शेयर्स, द फंड में बी आर इन्वेस्टमेंट्स, द फंड में बी द मनी वी हैव स्पेंट एज, जैसे हम टिकट खरीदते हैं तो पैसा देते हैं. A public enterprise may take any particular form of organization, उसके नेचर पर है. The suitability would depend upon its requirement. अब डिपार्टमेंटल क्यों है? उसका रिक्वायरमेंट है, हमेशा रहता है, एंड स्टैट्यूटरी रहता है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, एंड गवर्नमेंट इज अगेन अ प्रॉफिट मेकिंग. The suitability of an organization depends upon its requirement. At the same time, in accordance with general principles, any organization in the public sector should ensure organizational performance, productivity and quality. और हमारे पास कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी. So today we would be only discussing the डिपार्टमेंटल. डिपार्टमेंट का मतलब हो जाता गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा, एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री. मिनिस्टर उसका जो है ही इज द हेड, लेकिन उसको चलाता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, दोज हु आर अपॉइंटेड. क्योंकि मिनिस्टर आज रहेगा कल नहीं रहेगा. मिनिस्टर मे और मे नॉट बी गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. लाइक हमारे अभी जो पोर्टफोलियो है निर्मला सीतारामन, शी इज एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए द पर्सन मे नॉट बी अ फाइनेंस बैकग्राउंड. तो जो आपका हेड होता है वो इस सारी चीजों को देखता है.
दिस इज द, ये आपके पेपर का एक 1 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज. इंडिया के अंदर सबसे पहला ही आपका पब्लिक स्टार्ट हुआ था, फिर आपके स्टैट्यूटरी, फिर आपके गवर्नमेंट का. These enterprises are established as department of ministries and are considered an extension or part of ministry. The government functions through these departments and the activities are integral part of government. मतलब गवर्नमेंट जब अपने डिसीजंस लेती है तो इनके लिए भी डिसीजन लेना उनकी जिम्मेदारी है. They have not been constituted as autonomous or independent. मतलब ये स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं किया गया है, इसको गवर्नमेंट ही चलाती है. ऑल द डिसीजन दे हैव टू, उनके जब गवर्नमेंट में कोई भी अकाउंटेबिलिटी होती है तो ये अपने आप ही ये जो जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं, दे कम अंडर गवर्नमेंट. They act through the officers of government and its employees are government employees. अभी आपको मैंने बताया था that the minister may or may not be there, but जो उसके officers होते हैं वो होते हैं, and जो employees होते हैं उनको हम government employees कहते हैं. इनको अपॉइंट किया जाता है through the exams and they are not permanent to that particular department. जैसे कोई डिफेंस में गया तो बाद में हो सकता है उसका ट्रांसफर डिफेंस से दूसरे में हो जाए, unless and until that person is particularly associated to that ministry. These undertakings may be under the central or state and the rules of central or state are applicable. Example, railway, PNT. Now, what are the features? The main characteristics. First, the funding comes directly from government treasury and are an annual appropriation from budget of the government. Every February, around February, we have the budget allocation कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को हमने कितना पैसा एलोकेट करना है, क्योंकि अगर हमें डेवलप करना है तो हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को एलोकेट करना पड़ेगा. एंड जो पैसा भी उससे आता है दैट इज अगेन दैट गोज टू द ट्रेजर. They are subject to accounting and audit controls applicable to other government activities. यानी कि इनकी accounting proper, auditing आपकी होती है, इनकी पूरी जो है पूरा बैलेंस शीट बनता है and they are analyzed. The employees of the enterprise are government servants and their recruitment condition of service is same as under government. They are headed by IAS and civil servants who are transferable from one ministry to another. This is what I said. It is generally considered a major subdivision of the government department and are directly under the ministry. They are accountable to the ministry since their management is under concerned ministry. उसको पूरा मैनेज करना, दे डोंट हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे डोंट हैव एनी मीटिंग्स, दे डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो वेलफेयर के लिए है. तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री का जो कैबिनेट होता है वो इसकी देखभाल करता है, वो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डिसीजंस हैं वो लेता है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? These undertakings facilitate the parliament to exercise effective control over their operation. They ensure a high degree of public accountability. क्योंकि ये वेलफेयर के लिए बनाया गया है, इसमें जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, कोई भी आपका डेफिसिट है, प्रॉफिट है, everything is read in the budget. The public can, with the help of RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल पूछ सकती है कि ये जो हमारा पैसा यहाँ पर हमने लगाया है वेयर इट हैज बीन. लाइक एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है क्लास 11. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे व्हाट वी कॉल एज, ये जो रेलवेज है,
अब रेलवेज में वी आर पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. When you are paying good amount of money, definitely what you want is you expect good services, है ना. आप पैसा दोगे तो सर्विसेज तो एक्सपेक्ट करते हो. So most of the time now the government has made many grievance cells like आपका ट्विटर, देन आपके ईमेल्स. तो हम लोग कॉमन पीपल जो है यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं, व्हाट इज द सर्विस यू आर गिविंग. सो द पब्लिक कैन यूज द आरटीआई ऑल्सो. एंड इसमें जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है. यूजिंग आरटीआई यू हैव द राइट टू आस्क. The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasurer and hence is a source of income for the government. उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पूरा जो चेंज, एड, डिलीशन सब जो है उन्हीं पैसों से किया जाता है, प्लस जो गवर्नमेंट उस मतलब की एलोकेट करती है वो, नॉट फ्रॉम एनीथिंग आउटसाइड. ना ही हम शेयर्स मांगते हैं, ना अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लेती है तो वो जो है उन पैसों को लेकर उन जगहों पर खर्चा करती है. Where national security is concerned, this form is more suitable because it's under the direct control and supervision of concerned ministry. जहां हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक ही तरीके का चाहिए. वी डोंट वांट डिफरेंट people to come, different people to take different decisions. जहां हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है वहां हम पब्लिक एंटरप्राइज. जहां हमें वेलफेयर देखना है, जहां हमारा पैसा जो है वो कम से कम लगे एंड मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर गेटिंग द बेनिफिट, जहां ये चीजें हमारे लिए जरूरत है वहां हम पब्लिक एंटरप्राइज को सेट करें. देन बट मतलब पब्लिक है तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो दे ऑल्सो हैव सर्टेन डीमेरिट्स. द वेरी फर्स्ट इज departmental undertakings fail to provide flexibility which is essential for smooth operation of business. बिजनेस के अंदर हमारा जो एक पहला उसूल होता है, मतलब कैपिटल, मनी, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ के अलावा हमारे जो ऑपरेशंस हैं that should be flexible, that should suit to the day to day needs of the people. अब आपने देखे होंगे देर आर सो मेनी सर्विसेज, बैंक्स, दे सूट. आप वहीं पर अपना अकाउंट खोलते हो जहां आपको अपने अकॉर्डिंग जो यू आर गेटिंग दोस बेनिफिट्स. एंड देन टाइम टू टाइम देर आर सर्टन चेंजेस, वो भी जरूरी है. बट इन डिपार्टमेंटल नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं है, मतलब जो चेंज होना चाहिए एज पर सिचुएशन बहुत कम रहता है. अभी मतलब if we look into the postal and telegraph, many of the services they are not at all used, फिर भी वो सर्विसेज चल रही है हमारे यहाँ. देन आज की डेट पर, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन एग्जाम्पल, postal and telegraph के अंदर you have different kinds of services. You have the stamps, you have the envelopes, you have the registered post, then you have the. तो कई चीजें ऐसी थी जो कई सालों तक चलती रही जबकि वो बिल्कुल खत्म थी इस दुनिया से. Then the government had eliminated all those. फिर कुरियर सर्विसेज. अब कुरियर सर्विसेज में हम लोगों का क्या है, इफ वी आर टेकिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो हमारे पास अगर प्राइम मेंबर है तो आज मंगवाया आज रात तक आ जाता है. बट इन द गवर्नमेंट इट गोज थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर. दे डोंट यूज ऑल दोस. उनको लगता है कि ठीक है इवन अगर फास्ट भी जाना वो 2 दिन में पहुंचेगा. तो ऐसे जो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं इन द गवर्नमेंट. सेकेंड, the employees or heads of department of such undertakings are not allowed to take because they are not expertise. They are only authorized, not expertise. वो लोग मिनिस्ट्री जो है वो उसका अकाउंटेबल है, वो जवाबदारी है.
अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदारी। तो जो नीचे काम कर रहा होता है, दे जस्ट कैन ओनली टेक द डिसीजन व्हेन द मिनिस्ट्री सेज, दे कैन नॉट टेक ऑन देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी से मतलब अभी जैसे हमारे वो ओडिशा में 3 ट्रेन का जो कोलिजन हुआ था, राइट? इन दैट कोलिजन the IAS officer or the head might have come across, but he cannot take any action. First of all, उसको पूरा एक उसका एक वो he has to make a file, then that file will be presented in the parliament or with the concerned ministry, and then the decisions will be taken कि क्या करना है और फिर उसको implement किया जाए। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में कैसा होता है, आज गड़बड़ हुई, शाम तक गड़बड़ खत्म। This is how private works. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अभी रिसेंटली देर वॉज वन स्कैंडल और यू कैन से सम प्रॉब्लम। मतलब जो बॉस था, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो बॉस था ही वॉज इल ट्रीटिंग ऑल हिज एम्प्लॉइज। नाउ आप इल ट्रीट कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड, देयर वर सम प्रॉब्लम्स एक्चुअली, there was some problem in the shipment of the goods आपके टाइम से नहीं पहुंच रहे थे। अब वो जो है उसने फटाफट अपने अपने हिसाब से उसने जो है जिसको जो सुनाना सुना दिया। now the employees directly went to the HR and they complained. Immediately the CCTV camera was captured थर्सडे को, एंड इवनिंग तक मीटिंग बुलाई गई एंड द पर्सन वाज गिवन द नोटिस। मतलब जिस आदमी ने गलत किया तुरंत उसको पकड़ लिया। दिस डजंट हैपन इन द गवर्नमेंट। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपके सही डिसीजंस टाइम ले लेते हैं। These enterprises are unable to take advantage of business opportunity. क्यों? Why? The bureaucrats are the head, जो आपके IAS वगैरह होते हैं उनको हम बोलते हैं, are over cautious and conservative approval, मतलब they would go according to the rule, हमारे रूल में क्या कहा है। Sometimes in business you cannot follow the rules, you need to follow the risk. कभी कभी आप रूल नहीं रिस्क को फॉलो करते, वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां नहीं होती है। देयर इज रेड टेपिज्म, ये मैंने आपको जब करवाया था, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड टेपिज्म। आपके जो फाइल्स होते हैं ना, नॉर्मली इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस दे आर स्टैक, वो एक के ऊपर ऊपर थे, एंड उसके ऊपर क्या करते हैं नॉर्मली, इट इज मतलब ये एक ना सरकास्टिक कमेंट है, उसके ऊपर एक लाल फीता चढ़ा के उसको बंद करके रख देते हैं। एग्जाम्पल, मतलब कि बड़े बाबू हेड क्लर्क, उनके नीचे क्लर्क, उनके नीचे डिस्पैच क्लर्क। नाउ द डिस्पैच क्लर्क वाज एब्सेंट, डिस्पैच क्लर्क उस दिन एब्सेंट था, ठीक है। अब डिस्पैच क्लर्क एब्सेंट था, तो जो जितनी डिस्पैच क्लर्क का काम होता है फाइल्स को लेना और फाइल्स को भेजना, ठीक है। अब जितनी भी फाइल्स क्लर्क ने भेजी थी वो डिस्पैच क्लर्क के टेबल पर रेड फीते के साथ पड़ी रही, राइट? नाउ से दैट वाज थर्सडे, ठीक है, थर्सडे था, थर्सडे को बाबू डिस्पैच क्लर्क एब्सेंट था, फ्राइडे को एब्सेंट था, सैटरडे संडे छुट्टी थी। अब 4 दिन वो जो मतलब कि जो ये मतलब की फाइल है वो उसी जगह पे पड़ी रही, देयर वाज नो प्रायोरिटी। अब वो 4 दिन बाद आया तो उसने आराम से सब कुछ खोला और फिर एक एक करके वो सारे फाइल्स को भेज रहा था। तो उससे कितना टाइम होता है,
No action can take place unless it goes through the proper channels of authority. मतलब हेड क्लर्क जो है वो नेक्स्ट क्लर्क को देगा, वो डिस्पैच को देगा, डिस्पैच क्लर्क उसको डिस्पैच करके अपने पास एंट्री रखेगा, फिर पियोन उसको लेकर जाएगा। यानी कि इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो पूरा का पूरा जो सामान, वो जो मतलब की फाइल है, वो मतलब बंद पड़ी रहेगी। दिस डजंट हैपन इन द प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर तो है कि आप मर भी गए तो आपका काम कोई और करके चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन प्राइवेट व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपके हेड एब्सेंट है, हेड एब्सेंट है, और आपका जो प्राइवेट में काम है दैट इज डन थ्रू द कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर होता है उन सबके लिए दे हैव अ कॉमन पासवर्ड। तो जो नेक्स्ट इंसान होगा उसको पासवर्ड दिया जाता है, उसे बोला जाता है जाकर ये काम खत्म करो। दे डोंट वेट फॉर द हेड पर्सन टू कम एंड डू इट। और आजकल तो एक बहुत भगवान की दया से एक नया सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज वर्क फ्रॉम होम। आप नहीं आए हो कोई बात नहीं, आप वहीं से काम कर दो। बट इन द पब्लिक अंडरटेकिंग दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टिल डेट। मतलब कहने की बात है, मतलब ये हंसी की बात है, बट टिल डेट देर आर सो मेनी मूवीज मेड ऑन दिस रेड टेपिज्म। एंड एक बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी इनफैक्ट। दैट मूवी डेल्ट विद द ऐसे ही फाइल्स थे, और वो जो फाइल था, दैट पर्सन वाज अ टीचर। और आपको पता है टीचर मुझ जैसा होगा तो बहुत खड़ूस होते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ टीचर जो करप्शन, ब्राइब इन सब में बिलीव नहीं करता था। तो उनके बेटे की डेथ हो जाती यूएस में। राइट, अब यूएस में डेथ हो जाती है, एंड जो उनके एशेज हैं दे हैव टू बी फ्लोन, एंड द फाइल्स रिलेटेड टू द डेथ हैज टू बी गिवन। वो इंसान 2 महीने उस डिपार्टमेंट के जो है चक्कर काटता है। कभी बड़े बाबू छुट्टी पर हैं, कभी छोटे बाबू छुट्टी पर हैं, कभी फाइल इस टेबल से उस टेबल नहीं पहुंची। दिस लीड्स टू डिले इन डिसीजन। और बिजनेस में तो अपॉर्चुनिटी आया तो डिसीजन लेना पड़ता है। This next is there is lot of political interference through the ministry. भाई अब ये डिपार्टमेंट्स आर नॉट एनी बिजनेस यूनिट्स। तो प्रॉब्लम क्या आती है कई बार इन बिजनेस यूनिट्स के साथ में कि दे आर नॉट रनिंग ऑन द टारगेट बेस में नहीं चल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज द गवर्नमेंट मेक्स अ डिसीजन। कभी कभी इवन अगर जो आईएएस ऑफिसर जो हेड कर रहा है, इवन अगर वो कोई अपना रिकमेंडेशन दे भी देगा ना, देन ऑल्सो इट इज नॉट टेकन। These organizations are insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them. For example, I told you about the same thing जो मैंने भी आपको बताया था। Any company, any company has to change immediately when they find that there is some opportunity or threat. कोई भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो, जब कोविड आया था, व्हाट हैपेंड, कोविड आया तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि को मतलब कि उससे रिलेट करके बिजनेस करते थे, उन्होंने उन सब चीजों में जो है ऐड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है माई सिस्टर गेव मी वन सूट, उस सूट के साथ में जो है मास्क बना हुआ था। मतलब वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त में कंज्यूमर को इन सब चीजों की नीड है, तो वो अपनी जो ऑपरेशन है उन्हें मॉडिफाई कर लेते हैं। एंड ऐसे आपके कई एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर मतलब कि वी कैन सी दैट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली वर्क while they are working for the betterment। क्यों? क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो कोई दूसरा कर लेगा।
उन दिनों में आपको याद होगा मैक्सिमम आपके जो सर्विसेज थे सब ऑनलाइन हो गए थे, सब डिलीवर करने लग गए थे। लोकल जो आपके शॉप से वो भी ऑनलाइन डिलीवर करने लग गए थे, जो आपके रिलायंस जैसे बड़े बड़ी कंपनीज थी वो भी डिलीवर करने लग गई थी। सो दे चेंज देयर ऑपरेशंस एज सून एज दे सॉ दैट देयर इज चेंज इन द सोसाइटी। अगर उनको लगता है कि उनका सामान नहीं बिक रहा तो दे वुड स्टार्ट विथ सर्टन व्हाट यू कॉल एज टीआरपी गेम्स। मूवीज नहीं बिकती थी, पहले क्या होता था, द मूवीज वर नॉट सोल्ड, देन दे ऑल स्टार्टेड, उन्होंने देखा कि भाई लोग जो है टीवी ज्यादा देखते हैं, तो दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग ऑन द टीवी, टीवी चैनल्स में आने लग गए। वो अपने ऑपरेशंस को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि कंज्यूमर है वो वहां पर उनको अट्रैक्ट करते हैं। बट गवर्नमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, दैट दे डोंट मॉडिफाई देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। वो अपने हिसाब से चलते हैं, अगर उसके लिए कहना नहीं चाहिए, बट अगर हम अपने रेलवे का जो, मतलब आज से 20 साल पहले भी रेलवे ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही। वहां के पब्लिक बाथरूम्स को हम कभी यूज नहीं कर सकते, या कुछ चेंजेस हुए हैं, नॉट ऑल, दे नीड टू। तो दे नीड टू, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश फॉर द वेलफेयर, तो वेलफेयर को भी देखना पड़ता है। सो दिस इज हाउ आपका जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है दे आर मैनेज्ड। तो इनके ये फीचर्स होते हैं, इनके मेरिट्स भी हैं, एंड बेटा बट ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक इनटू द merits and demerits, we have to take the merits because पब्लिक enterprise इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। In India, we are not having the people who are very rich, and not only that they are rich, rich के साथ में हमें ये भी तो चाहिए ना बच्चा कि they are ready to invest in the large scale what you call operations। अब जाकर हमारे अदानीज and then हमारे अंबानीज they have started investing in such projects, like अभी recently they have ports development में, airport के development में they have started। पहले they were not this much self sufficient। तो हमें वो भी तो देखना है ना कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर द इलिटरेसी रेट एंड द पॉवर्टी रेट इज मोर, वहां पर हाउ वी कैन, so that is why in India public undertaking जो है that is still existing and it is very important also। This is what we have done in the very first session. I'm just quickly revising what we have done. Today, first of all, we understood that ये जो chapter है, what it is about. Then हमने इसके अंदर दो चीजें पढ़ी, the difference between public and private enterprises। जो डिफरेंसेस थे उसमें हमने पढ़ा कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री वेयर द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट, वेयर जो प्राइवेट होती हैं दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओनर्स, फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। In India, there was a question what kind of economy should we take, whether we should go for a capitalist economy, jahan more industries by private people, ya all the industries in the hands of the government। हम दोनों नहीं ले सकते थे, and that is why India took mixed economy, यानी कि जो capitalist industries थी they were managed by the government, and जो छोटी consumer industries थी they were given to the private। And later on the government also introduced a new economic policy 1991 जिनमें ग्लोबल कंपनीज को भी एड ऑन कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा प्राइवेट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोल यानी कि एक सिंगल कोई भी सैलन ओलर, कोई भी वेजिटेबल वेंडर। देन आपके पार्टनरशिप जहां आपकी लीगल सर्विसेज हैं,
आपके क्लिनिक्स हैं, देन cooperatives, joint Hindu, and last but not the least, big companies owning the business establishment. ये सब हम पढ़ चुके हैं. In this chapter, we are starting with public enterprise, जिसके अंदर पब्लिक के अंदर हमारे आता है, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आता है हमारा पहला डिपार्टमेंटल, यानी कि दोज डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज विच आर owned by government, which are actually run by government, which are having the employees who are called government employees. The second हमारा है statutory, the special act of parliament 1956, and the third one हमारा जो है वो है government companies. और आज हम लोगों ने पढ़ा द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल, यानी कि दोज विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पब्लिक, जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है ट्रेजर से, और जो रेवेन्यू आती है वो भी ट्रेजर में जाता है, नॉट एज अ प्रॉफिट. उसको हम प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह नहीं लेकर आते. एंड इट इज, जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एंड जो उसका हेड होता है वो आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट होता है. और गवर्नमेंट जो है थ्रू इट्स कंट्रोल वो उसमें चेंजेस करती रहती है. यस, ऑफ कोर्स दे हैव द ऑडिटिंग आल्सो. द मेन इसके जो पॉजिटिव है वो ये है कि ये दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर. They are high degree of accountability. उनमें कुछ भी होता है, a common person using RTI can definitely ask for the answer. They are into the budget. Budget डाला जाता है तो उस वक्त में उनको बताना पड़ता है what was the revenue last year, what is the likely revenue this year, what are the changes they have to tell. And in country where you are having the problems of national security, वहां ऐसे डिपार्टमेंट्स का होना जरूरी है. ऑन द अदर हैंड सच डिपार्टमेंट्स आर वेरी इनसेंसिटिव. हम इनको बिजनेस पर्पस या कंज्यूमर पर्पस से देख नहीं सकते हैं. दे डोंट चेंज देयर पॉलिसीज, दे डोंट हैव द क्विक डिसीजन मेकिंग. द डिसीजंस आर ऑफन डिलेड, कई बार तो सालों फिर खत्म ही हो जाता है. दे डोंट टेक द एडवांटेजेस. अगर कोई न्यू चीज आई है तो वो एडवांटेज वो इमीडिएटली नहीं लेते हैं. द मशीनरीज आर ऑफन ऑब्सोलीट, पुराने होते हैं. एंड जितने भी डिसीजंस होते हैं नॉर्मली दे आर टेकन बाय द मिनिस्टर. जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कि जो इसके हेड होते हैं आईएएस वगैरह, दे डोंट इंडिविजुअली एक्ट. और कई बार अगर उनको चेंज करना भी होता है ना तो दे डोंट डिविएट, एंड उसकी वजह से कई बार जो है नुकसान हो जाता है. बट स्टिल ये जो डिपार्टमेंट्स हैं दे आर नॉट रन फॉर एनी प्रॉफिट, दे आर रन फॉर वेलफेयर, दे आर रन फॉर अवर गुडनेस. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, हमें सस्ते में ट्रेन की जरूरत है, पोस्टल टेलीग्राफ की जरूरत है, इसीलिए दीज डिपार्टमेंट्स आर एग्जिस्टिंग. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन टुडे. In our next session, we will be perhaps going for the statutory as well as the government companies. और इसके साथ आपका पब्लिक सेक्टर जो है वो आपका खत्म हो जाए.